Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to 20 GK question session where we are going to look at the 20 GK question from the today's newspapers only. So let's look at the questions. I hope you have gone through the Hindu news analysis and the Indian Express news analysis because all of the questions are from today's newspaper only and most of the answer would be easily available to you if you have gone through those news articles. So let's look at the questions. So Hamas has accepted a ceasefire proposal against Israel. Which of the following countries mediated the ceasefire discussion? So if you will go through either of those newspapers, both the Hindu as well as the Indian Express, the first news article from Hindu news analysis was regarding this only. And basically Hamas has accepted the Israel-Qatari ceasefire proposals, which means the answer would be both A and B and the answer would be D. Moving on. Which is the last remaining city of Palestine which Israel has decided to attack if ceasefire is not continued? So all of these are actually cities in the state of Gaza only. This is in actually West Bank. Gaza is basically a city. Gaza strip के अंदर ही Gaza एक city है in the north. Khan Yunis is somewhere in the center and Rafah is in the south. And now we know it is the city of Rafah because अभी presently जो Palestinians हैं वो सारे के सारे राफा सिटी के अंदर कंसंट्रेटेड हो चुके हैं एंड अब इजराइल ने क्या बोल दिया है कि राफा सिटी को भी खाली कर दो बिकॉज अब फाइनली मैं राफा सिटी पे भी अटैक करूंगा. मूव ऑन करते हैं. Delhi LG has recommended NIA probe against AAP over alleged funding from which of the banned Sikh separatist organization? So हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं and the answer would be Sikh for Justice. All these are banned. ये सब banned organization है under UAPA. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 ये सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है बट फॉर अस द आंसर इज सिख फॉर जस्टिस. मूव ऑन करते हैं. द प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस? सो अगेन ये आपकी बहुत कॉमन नॉलेज हो चुकी होगी कि जो 18th लोकसभा इलेक्शन जो प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शन है दीज आर टू बी कंडक्टेड इन द 7 फेजेस नाउ. मूव ऑन करते हैं. हाउ मेनी स्टार कैंपेनर्स कैन अ पार्टी नॉमिनेट इन अ लोकसभा इलेक्शन? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द आंसर वुड बी 40. मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बीइंग यूज्ड इन इलेक्शन? सो आपको यह भी पता होगा कि आपने अगर ईवीएम या इलेक्शन कमीशन ने एक बार ईवीएम खरीद ली तो वो लाइफ लॉन्ग तो चलेगी नहीं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कुछ उसकी लिमिट होगी, कुछ शेल्फ लाइफ होगी. सो व्हाट इज द शेल्फ लाइफ? सो एक्चुअल में जो एक ईवीएम होती है वो बेसिकली 15 साल के लिए वैलिड होती है. 15 ईयर्स के बाद आपको उनको फिर से रिप्लेस करना होता है. सो आंसर वुड बी सी 15 ईयर्स. नेक्स्ट. मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेट करा है. अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने सी बनाया ऑन द बॉर्डर विद इक्वल डिवीजन बिटवीन बोथ स्टेट्स. हाउएवर दिस डैम इज टोटली इन द स्टेट ऑफ केरला. सो ये डैम पूरा का पूरा स्टेट ऑफ केरला के अंदर ही लोकेटेड है बट इसकी ओनरशिप इज विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. मूव ऑन करते हैं. In case of any interstate dispute, which of the following legal forum can be approached by the states? So again, अगर आप तमिलनाडु केरला का केस फॉलो कर रहे होंगे, you will find out कि दोनों की दोनों स्टेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं if they want to approach a legal forum for resolution of any kind of dispute between them. Move on करते हैं. In which of the following cases the Supreme Court has held that the right to be free of ill effects of climate change is part of a person's fundamental right of the Constitution? So ये जो चारों केसेस हैं, चारों के चारों एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं. All of these are cases, very important cases related to environment, but the answer for us is M.K. Ranjit Singh versus Union of India, जो latest है अभी आपका 2024 का judgment. As per the 2024 Freedom Index, what is India's rank out of 180 countries? So we know it is 159 rank आई है. Last year it was 161. Which organization compiles and releases the Freedom Index? So again अपन ने इसको भी डिस्कस करा है. It is Reporters Without Borders. अपन ने जस्ट डिस्कस किया था इसको. As per the 2024 Press Freedom Index, which country was ranked last? Remember, I was last, so it is Eritrea. This is 180, 179, 178, 177. आपको सारे याद नहीं करने, but आपको लास्ट जरूर पता होना चाहिए, which is state of Eritrea. As per the 2024 Press Freedom Index, which country has topped the index? So again, Norway would be the answer, and it's very easy to remember because since 2019, Norway has been the top of the list. मूव ऑन करते हैं. एज पर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट व्हाट गोल हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टीज टू लिमिट द इंक्रीज इन टेम्परेचर? सो 2016 के अंदर जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, इट हैपेंड इन पेरिस और इसका रिजल्ट था पेरिस एग्रीमेंट. एंड पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अपन ने 2 गोल्स रखे थे कि हम ट्राई करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस में हो और
किसी भी सिचुएशन में 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज ना हो, विच मीन्स द आंसर हियर वुड बी 2 डिग्री सेल्सियस। मैंने डेलिबरेटली 1.5 नहीं पुट अप करा बिकॉज कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज जो पेरिस एग्रीमेंट की भी लैंग्वेज है इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा, बट ये आइडेंटिफाई कर पाना कि 2 सेल्सियस की बात हो रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस की, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए 2 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम हो सकता है। मूव ऑन करते हैं। What is the second most potent greenhouse gas after carbon dioxide? So greenhouse gases वो gases होती हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को या अर्थ को गर्म करती हैं, हीट्स अप द अर्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है पोटेंट, एंड द सेकेंड इज एक्चुअली मीथेन। मीथेन भी बहुत ज्यादा न्यूज में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। मूव ऑन करते हैं। MRIs आर मेडिकल इमेजिनिंग टेक्निक्स दैट यूज पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स। What does MRI stand for? So simply MRI का फुल फॉर्म पहुंचा है, एंड अगर आप इसकी डेफिनेशन को ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसके अंदर आंसर भी निकाल पाए। फॉर एग्जांपल यहाँ इमेजिंग की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे रेडियो वेव्स हैं, तो कुछ ना कुछ टर्म्स एक्चुअली हो सकता है इसके फुल फॉर्म में भी हो, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। सो आंसर वुड बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो MRI का फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज फेसिंग फॉरेस्ट फायर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन? सो अगेन ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम टुडेस हिंदू न्यूज़पेपर एंड योर इंडियन एक्सप्रेस ओनली, एंड यू विल फाइंड आउट इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत टाइम से आपके फॉरेस्ट फायर रेज कर रहे हैं, एंड अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया है जो इसको अभी आज के दिन ही सुनने वाला है। मूव ऑन करते हैं। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। वेयर इज पोलावरम? This project is located, so it is a project in the state of Andhra Pradesh. Again, आज के न्यूज़पेपर में पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई है। मूव ऑन करते हैं। कांग्रेस इज प्रॉमिसिंग टू रेज द MG नरेगा वेज। My question is, when was the MG नरेगा scheme came into existence? And the answer would be 2006. The answer would be 2006. Remember this again, जो MG नरेगा एक्ट है, नरेगा एक्ट है जो आपका, ये 2005 में आया था। नरेगा जो एक्ट है ये इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट्री एक्ट 2005 में, बट जो आपकी स्कीम है, आपकी जो स्कीम है, मैंने स्कीम के बारे में पूछा है, ये 2006 से इंप्लीमेंटेबल हुई है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जिस साल एक्ट आया वो जरूरी नहीं है उसी साल उसको इंप्लीमेंट या उसके बेसिस पे स्कीम क्रिएट करी गई हो। एक्ट किसी और ईयर में आ सकता है, और हो सकता है सेम ईयर में उसके नेक्स्ट ईयर में स्कीम बनी हो। तो नरेगा विच इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2006 एक्चुअली। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। So another interesting which has happened कि GST gross collection has crossed rupees 2 lakh crore in April 2024. What is the highest slab of tax rate in GST? So GST के अंदर बहुत सारी स्लैब्स होती हैं। अगर मैं आपसे लोएस्ट पूछूं तो कई लोग उसको 5% बोलेंगे, बट इट्स एक्चुअली 0% या नील रेटेड। जीरो होना और एग्जेम्प्ट होना अलग अलग चीजें होती हैं। जीरो रेटेड गुड्स भी होते हैं, फिर आपका 5% आता है, फिर आपका 12% आता है, फिर आपका 18% आता है, और फिर आपका 28% आता है। विच मीन्स हाईएस्ट स्लैब जो मैंने पूछी है, दिस वुड बी 28%। एंड इन स्लैब्स को आप याद रखिएगा, बिकॉज प्रोबेबली मैं एक दिन इसमें से लोएस्ट या कोई और सी भी स्लैब पूछ सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि मेजरली यही स्लैब्स होती हैं, कुछ केसेस के अंदर 0.5, 1% एक्सेट्रा ये सब भी हो सकती हैं। जो इंटरेस्ट रेट की होती है उसके अंदर 3%, 6% इस टाइप की स्लैब्स भी हैं। बट मेजरली जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस लगते हैं वो इन 5 रेट्स के ऊपर लगते हैं। सो फॉर 28 द आंसर वुड बी बी, द हाईएस्ट स्लैब इज 28%. So these are the 20 GK questions from today's session. I hope to see you in the next class with the next set of 20 GK questions, which would be very important or very relevant for your preparation. Thank you and have a very nice day from my side.